is integer, an integer है. Number of electrons present in the p Number of, orbital are equal yes, yes, yes. are equal to n plus 1, where n is equal to 2n an plus integer. 1 Very good, very integer. good. Uh, Every carbon atom has a p orbital. हाँ. It is cyclic and planar compound. It is a cyclic and planar compound. What are these three rules called? हक्कल रूल. कल रूल. थर्ड रूल है वो अक्कल रूल तो इंटीजर थर्ड का. वाला था बेटा. इंटीजर का. ये तीनों these three are the conditions for Conditions for aromaticity. aromaticity, aromacity, Yes. or whatever. You understood, right? Yes. Achha. So here you have benzene in front of you. Today you're going to see the ortho, meta, and para positions. Are you? Do you all know what is ortho, meta, and para? Yes. Yes. सबको पता है? If this is carbon atom 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5, this is 6. Okay. So the second and sixth positions are called as Ortho. ortho positions. The third and fifth Para. positions are called as Para. para positions. And the fourth position is called as Meta. everybody सर knows रॉन्ग है. फोर्थ का पैरा आएगा, 3-5 का मेटा आएगा. Yes, sir. Exactly. तो क्यों बोले फिर इसके बाद para? This is meta and this is para. तो तुम लोग बोले तुमको पता है, फिर तुम लोगों ने गलत बोला, तो ये लिखना है तुमको फिर अभी 10,000 times each. जिन मैंने नहीं बोला. जिन लोगों ने गलत आंसर दिया उन लोग को ये 10,000 times each लिखना है. You have to submit the paper in the class. Yes. No, I'm very serious. I'm not kidding. Who said yes? Sharon, you said yes, right? Yes. So you write this thing 10,000 times and submit. Yeah. So second and sixth position is ortho. Third and fifth position is meta, and fourth is para. Okay. Yes. Achha. Now, benzene undergoes electrophilic substitution reaction. This we had discussed in the last class, right? No? Yes. Yes or no? Yes or no? लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, सिर्फ एक ही बंदे को याद है कि हम लोग ने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिया था. व्हाट इज अ इलेक्ट्रोफाइल? Electron loving Electron species. अट्रैक्ट करने वाला. एग्जैक्ट, करेक्ट, ठीक है. नाउ व्हाट वी नो अबाउट बेंजीन इज all the 6 hydrogen atoms attached to benzene. ये 6 के 6 hydrogen atoms जो बेंजीन को attached है ना बेटा, they all are equal. Equal in the sense they all are equally stable, they all have the same bond length, and they all have the same chemical reactivity. So it is by default that whenever a electrophile is coming, a substituent is coming, it is going to attach on the first position. Here वो सब्स्टिट्यूएंट या फर्स्ट पोजीशन पे अटैच करेगा. फर्स्ट में क्यों रहेगा? फर्स्ट में क्यों होगा? जब वो अटैक करेगा, दिस इज द मोस्ट प्रोन एरिया एज पर द 3D स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन. ठीक है, तो इट्स लाइक फर्स्ट मतलब पता है कैसा बेटा? बोलने का मतलब है वो फर्स्ट ये हो सकता है, 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 ये हो सकता है. जहां पे वो सब्स्टिट्यूएंट अटैच कर रहा है
उसको मैं फर्स्ट कंसिडर करूंगा और फिर क्लॉकवाइज नंबरिंग दूंगा, समझा? यस 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 Yes. ठीक है ना? अगर सब्स्टिट्यूएंट यहाँ लगा होता तो ये फर्स्ट होता, ये सेकंड फर्स्ट होता, होता, ये yes. थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ऐसे. ओके, फॉर आवर कन्वीनियंस आई एम कंसिडरिंग दिस पिनाकल एज द फर्स्ट. ओके, सबका बॉन्ड लेंथ सेम है. हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन. ओके, Yes. स्ट्रक्चर ऑफ Yes. बेंजीन एक्चुअली पोर्शन में नहीं है, बट स्टिल वी डिस्कस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, राइट? अच्छा, सो नाउ द क्वेश्चन कम्स, एक बार इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया तो दोबारा भी होगा अगर मैंने एक और इलेक्ट्रोफाइल इसमें ऐड किया तो, राइट? Yes. Yes. If I add this electrophile, if I send this electrophile, what I want to know is after this substituent is attached, तो मैं सारी आवाज अभी करनी मेरे लेक्चर में, ठीक है? It can attach either here or here. देख बेटा, यहाँ पे अटैच करे, यहाँ पे अटैच करे, both same positions हैं. It can attach here or it can attach Para. here. Am I right? Yes. Yes. अब सवाल ये उठता है बेटा कि अगर मैंने ये सेकंड इलेक्ट्रोफाइल इसमें डाला, अगर ये सेकंड सब्स्टिट्यूएंट इसकी तरफ आ रहा है तो ये कहाँ अटैच करेगा? ये ऑर्थो पे जाएगा, ये मेटा पे जाएगा, या फिर ये पारा पे जाएगा? ठीक है, Yes. अच्छा फाइन. तो नाउ सर एक बार रिपीट करो ना. मैं रिपीट करूंगा. मैं ये बोल रहा हूं कि एक बार सब्स्टिट्यूशन हो गया एट द फर्स्ट कार्बन एटम, द सेकंड इलेक्ट्रोफाइल व्हिच इज कमिंग इन, उसके लिए चॉइसेस है, वो या तो सेकंड या सिक्स्थ व्हिच इज वन एंड द सेम पोजीशन व्हिच इज योर ऑर्थो पोजीशन, या फिर थर्ड एंड फिफ्थ व्हिच इज योर मेटा पोजीशन, एंड फोर्थ पोजीशन व्हिच इज योर पैरा पोजीशन. तो वो कहां पे अटैच होगा, दैट इज अ क्वेश्चन मार्क. यस तो वो कहां अटैच होगा, उसका क्या नेचर है, व्हाट इज द केमिस्ट्री बिहाइंड इट, वो अपने को आज देखना है. ठीक है, एंड वंस वी कंप्लीट दैट्स ऑर्थो, मेटा एंड पैरा पोजीशंस, दिस चैप्टर विल बी डन. ठीक है, फिर हम जिंदगी में दोबारा कभी नहीं मिलने वाले. Yes. वो चीज तो है. तो बेटा क्लास खुलने देगी. ठीक है, ये लिख लिया, कैन आई रब दिस गाइस? Sir, Yes. यहाँ पे लिख लो साइड में, जिनको 2 and 6 is ortho, 3 and 5 is meta, and 4th is par. ठीक है, over here. Now let us see which groups are ortho directing groups, meta directing groups, and which groups are para directing groups. अब ये मैंने बड़े बड़े शब्द तो इस्तेमाल कर दिए हैं बेटा. Now क्या बोलते हैं, ये जो बड़े बड़े शब्द मैंने यूज करे हैं इनका मतलब क्या है? तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू लुक एट ऑर्थो एंड पैरा directing groups. Ortho and para directing groups. You need to be very attentive in this lecture because ये जो है ये एक थियरी तो है ही अपने 11th के लिए, ये एंट्रेंस में ना बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाएगा बेटा. आप कब पढ़ रहे हो? 4 फरवरी 2021. नेक्स्ट ईयर 4 फरवरी 2021 ये आप भूल मत जाना बेटा, देखो, बिकॉज आप एंट्रेंस के करीब रहो. 22. Yeah, 22, 23, 24. ठीक है, you understood what I was saying, right? तो उस हिसाब से just keep this concept in mind. It is a very important concept. नहीं समझेगा तो I will, and first of all I'm going slow because I know थोड़ा सा तुम लोग को क्या बोलते हैं, धीरे से समझाना पड़ेगा, इसलिए मैं धीरे धीरे ही पढ़ा रहा हूँ आज तुमको. ठीक है, so first is ortho para directing group, or they are also called as ring activating groups. अब ये किसकी बात हो रही है? ये किसकी बात हो रही है? ये बात उनके लिए हो रही है जो एक सब्स्टिट्यूएंट लगने के बाद दूसरा आ रहा है. ठीक है, एक सब्स्टिट्यूएंट, ओए भाई ये
अरे लेक्चर चालू है तो लाइट बंद कर देती. Sorry, my wife was playing pranks with me like lecture, which is very wrong. Fine. So look at this. Ortho and para directing groups, ring activating groups, ring activating group. Ring activate मतलब वो ring को activate कर देता है, resonance कर देता है. Resonance हमने पढ़ा है last lecture में, not last lecture, but if you remember जब हम लोग Yes. बेसिक्स कर रहे थे तब मैंने आपको रेजोनेंस के बारे में बताया था. Yes. 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 What is resonance, guys? Shifting of shifting double of bond bond inside the Of- benzene. yes. shifting of bond, double bond. Okay, shifting of double bond or moving of double bond within the. Yes. So when I talk about resonance only with respect to benzene, this is something like this. ये bond यहाँ पे आएगा, ये bond यहाँ पे आएगा, ये bond यहाँ पे आएगा और गोल गोल. सर्कल से भी देखा थे. हाँ, this is equivalent to this. ये घूमता रहता है इसलिए this is equivalent to this. Okay? Yes. This we all know. Now let us see कि अगर मेरे पास फिनॉल है बेटा, एक्सटर्नल का डिस्टरबेंस हो रहा है क्या? No. No. मेरे यहाँ पे घर के पास मंदिर है जहाँ पे रोज सुबह सिर्फ एक दो ही गाने लगाते हैं, देवश्री गणेश एंड मनमोहन. सो अगर डिस्टरबेंस हो रहा होगा तो प्लीज बताना, मैं इसको बंद कर दूं. व्हाट इज दिस बेटा, कैन यू सी? Phenol. 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 वेरी गुड, दिस इज अ फिनॉल. फिनॉल में विच इज द और क्या बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड? Alcohol. 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 Hydroxy. Hydroxy. कैन आई कॉल इट हाइड्रोक्सिल? Yes. Yes. परफेक्ट, ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप. ए बेटा, ऑक्सीजन के बारे में तुमको क्या पता है? ऑक्सीजन कितने बॉन्ड्स बनाता है? 2 bond. Two Two bonds. ऑक्सीजन ने यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया है और इस बेंजीन रिंग के इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया Yes. है. Yes. Yes. ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6 electrons. 6 electrons. 6. एक इधर गया, एक इधर गया, कितना बचा बेटा? 4 electrons. Four. वो चार किधर गया? Lone pair. Lone pair. Yes. I'm so happy that you guys are actually brilliantly answering me today. I'm very happy. तो ये लोन पेयर की कहानी है बेटा, ठीक है? अभी let us see, pay attention. अब इसमें क्या होगा? तो वो जो S वाला पार्ट था वो ये था. I have a phenol. What is phenol? Phenol is nothing but hydroxyl group attached to benzene ring. Benzene ring के साथ OH group attached है. Simple, ठीक है? अब कोई दूसरा कंपाउंड या फिर कोई दूसरा एलिमेंट है जो इलेक्ट्रोफाइल है, उसको ना, सॉरी, इलेक्ट्रोफाइल इज पॉजिटिव बिकॉज उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए. वो इलेक्ट्रोफाइल है, वो इसमें अटैक करना चाह रहा है, इसके अटैच होना चाह रहा है. अब इस पोजीशन पे तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो या तो वो ऑर्थो पोजीशन लेगा, या तो वो मेटा पोजीशन लेगा, या तो वो पैरा पोजीशन लेगा. जब मैं यहाँ चंद्र बिंदु बनाता हूँ उसका इक्विवेलेंट यहाँ पे भी होता है, आइदर दिस और दिस और दिस. क्लियर? Yes. Yes. ठीक है? So it will either attach here or here or here. अब the question comes कि अगर फिनॉल है तो जो दूसरा इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है वो ऑर्थो पे जाएगा, मेटा पे जाएगा या पैरा पे जाएगा. Now हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अ ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप. वो या तो ऑर्थो पे जाएगा या तो पैरा पे जाएगा, दोनों में से कोई भी एक पॉसिबल है. Why is the question. Now let us see the chemistry. Can I rub this? Yes. सर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे. ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है. कैसे पता चल रहा है तुमको? देख कैसा. योर आंसर इज करेक्ट, बट तुमने इसको बताया कैसे? तुमको दिख कैसे रहा है कि वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है? सारे कार्बन एटम्स आर हैविंग अ डबल बॉन्ड. सो क्या दिक्कत, मतलब यहाँ सर पे रिजोनेंस इफेक्ट से. बोलोगे? रिजोनेंस इफेक्ट. रेजोनेंस इफेक्ट. तो ये रेजोनेंस इफेक्ट हो कैसे रहा है वो समझो पहले, ठीक सर है? वो लोन पेयर का एक. हाँ जी, हाँ. नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग. इट्स वेरी गुड शुभम दैट यू नो दिस, ठीक है? आई एम एक्सप्लेनिंग, ट्राई टू रिलेट इट, ठीक है? ये देखो, ऑक्सीजन के पास ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर ना यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये लोन पेयर यहाँ पे शिफ्ट होता है,
ये लोन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। जब ये लोन पेयर यहाँ पे शिफ्ट होगा, ठीक है, यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट होगा इस कार्बन एटम। जब ये होगा तब स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा, तब स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा। I'm trying to be a little colorful so that you understand the concept. Guys, do not write anything. Please first understand because copy तो आप कर लोगे but concept समझना difficult हो जाएगा। जब वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होगा क्या होगा बेटा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा। डबल बॉन्ड। ये OH है, ये इसके ऊपर है और इसके ऊपर एक हल्का पॉजिटिव चार्ज है। और जब ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, टू इसके लोन ऊपर पेयर क्या आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड ऐसे का सिंपल है। समझ रहा है बेटा तुम लोग को क्या किया मैंने यहाँ पे? Yes. Yes. देखो, these two electrons came over here. When these two electrons came over here, bond was formed between this carbon and oxygen. Oxygen के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा because oxygen का इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया। ये जो बॉन्ड यहाँ पे बना हुआ था, ये बॉन्ड यहाँ पे बन गया, इसलिए ये पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, इस पे शिफ्ट हो गया। तो इस पे क्या आ गया बेटा, नेगेटिव चार्ज आ गया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया इस वाले पोजीशन पे। व्हाट इज दिस पोजीशन? ऑर्थो पोजीशन। Or यस और नो? Yes. Yes. कोनो दिक्कत अभी? no. इसके बाद देखो क्या होगा, इसके बाद होगा ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हैं, these electrons will shift to this position. यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएंगे और ये जो डबल बॉन्ड है वो इस पोजीशन पे शिफ्ट हो पैरा। जाएगा, पैरा पोजीशन पे शिफ्ट हो जाएगा। ये यहाँ पे आ गया तो यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ गए तो यहाँ नेगेटिव हो गया और ये। समझ रहे हो क्या हुआ बेटा? ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन एटम पे शिफ्ट हो गए तो यहाँ का डबल बॉन्ड निकल करके यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, ये नेगेटिव साइन है उसके ऊपर वाला, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट हुए उन्होंने यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाया, ठीक है। Yes. Yes. नेक्स्ट स्टेप देखना बेटा, these electrons will shift to this position to form a bond. और ये जो मेरा बॉन्ड है वो इस कार्बन एटम पे है, ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ पे शिफ्ट हो गए बिकॉज यहाँ पे वो दूसरा वाला शिफ्ट हो रहा है। जब आगे वाला आ रहा है, पीछे वाला आ रहा है तो आगे वाला भी आगे बढ़ेगा ना बेटा। Yes. आगे वाला। Yes. Yes. अब आप देखें ये देखो, यहाँ डबल बॉन्ड है, अब यहाँ बन गया और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट हो गए तो इस पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है बेटा। ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट हुए तो अब यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया और ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस वाले कार्बन एटम पैरा ऑर्थो पोजीशन पे शिफ्ट हो गए, ठीक है। Yes. 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 I'm waiting for questions। अब क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस पोजीशन पे शिफ्ट होंगे, इस पोजीशन पे शिफ्ट होंगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन लोन से पेयर हो निकले जाएगा। वो वापस और वापस पेयर हो हो जाएगा। तुम लोगों ने ये पढ़ा है क्या पहले? Yes sir. Yes. Sir. Resonance effect. Resonance अरे effect. तो मैं इतनी मगजमारी क्यों कर रहा हूँ फिर समझाने के लिए? नहीं बट ये समझो, रिवीजन हो जाएगा। ये लेकिन अलग कॉन्सेप्ट है, ये ऑर्थो मेटा पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं। देख बेटा, हमने कहां से शुरू किया था, हमने ये डबल बॉन्ड से शुरू किया था, हम कहां पे एंड हुए, हम उसके ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड पे एंड हो गए। तो ये साइकिल देखो, मैंने बीच में सिर्फ फॉरवर्ड साइन नहीं किया, मैंने इंटरचेंज साइन बताया, मतलब ये इंटरचेंज होता रहता है, ये पोजीशन में, ये पोजीशन में, ये पोजीशन में, ये पोजीशन में। अब नाउ द कॉन्सेप्ट कम्स ऑफ ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। बेटा जब आप इस स्ट्रक्चर को देखते हो, जब इस रेजोनेंस को आप देख रहे हो आपकी आंखों के सामने, आपको इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज्यादा कहां पे दिख रहा है? Ortho and para पे। Ortho and para. Ortho and para. Meta पे नहीं है। ऑर्थो। मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कभी भी बढ़ा था क्या? No. No. ठीक है। तो अब ऐसे कंपाउंड में, फिनोल जैसे कंपाउंड में, जो कि एक
डेरिवेटिव है बेंजीन का, इसमें अगर मैं दूसरा इलेक्ट्रोफाइल डालेगा, एक दूसरा इलेक्ट्रोफाइल जब मैं इसमें ऐड करूंगा तो वो या तो ऑर्थो पे जाएगा बिकॉज इलेक्ट्रोफाइल नीड्स मोर इलेक्ट्रॉन्स, तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे है, तो या तो वो ऑर्थो में से कोई एक पोजीशन पे जाएगा या फिर वो पैरा पे जाएगा। क्यों? बिकॉज यहाँ पे उसको ज्यादा इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। गाइस, डिड यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट? Yes, sir. Yes, Yes. sir. एवरीवन, Yes. Yes. एनी डाउट्स? किसी ने पहले नहीं पढ़ा था, किसी को नहीं आता, किसी को कोई क्वेश्चन है इसमें तो प्लीज पूछ लेना बेटा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ओके, कूल। सो ये बना लो बच्चे जैसे मैंने बनाया है बोर्ड पे। डन? No. केदार, Yes, sir. कर लेना बड़ा। Oh, sir. गिरीश, ये गिरीश कभी लेक्चर में आता है कि नहीं आता? आता है सर कभी कभी। कभी कभी आता है। अभी भी नहीं है। गौरव? गौरव भी नहीं है, सोया है शायद। हाँ बेटा, सोया रहेगा, रुको उसकी नींद भगा देते हैं। गौरव, आपको समझ में आया? नहीं सर, लेक्चर में ही नहीं है, रुको फोन करता हूँ उसको। गौरव भी नहीं है। वेरी गुड। कितने बच्चे हैं क्लास में? 78. अच्छा 76. अच्छा। आशुतोष मिश्रा, हेलो। हाँ हेलो सर। हाँ बेटा, यस सर, बोल। समझा कि नहीं? समझा सर। समझा सर। अच्छा अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। एकाने, अजिंक्य, रचित, यस सर। नचिकेत, टैरन, निकिता, Yes, sir. Yes. Yes. खुशी, सर खुशी आ नहीं। रहा है अभी। क्या बोल रहे हो बेटा? अभी आ रहे हैं। अभी आ रहे हैं। अच्छा, ये हो गया लिख के? No. यस सर। Who said no? एक दंता है ये देखो, Cl, Br, then OH, OCH, और NH2। फिर आप देखेंगे इन सब कंपाउंड्स में कॉमन क्या दिख रहा है आपको? Lone pair. Lone pairs. Exactly. Lone pair. So the compounds which have lone pair of electrons, ठीक है, the compounds which have lone pair of electrons act as ortho and para directing groups। ए बेटा, हमने इनको ortho and para directing groups क्यों बोला है? बिकॉज ये ग्रुप अटैच था, इसीलिए ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा। ठीक है, ये ग्रुप अटैच था इसीलिए ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा। और इस ग्रुप, ये ग्रुप यहाँ पे अटैच था, इसीलिए जब दूसरा इलेक्ट्रोफाइल आया वो या तो ऑर्थो पे गया या फिर वो पैरा पे गया। समझे? Yes. Yes. सर वो अब देखो। फोर्थ क्या है? OCH3। हाँ बेटा, OCH3।
अब सपोज यहाँ पे क्लोरीन अटैच, ठीक है, इसके पास भी बहुत सारा लोन पेयर है। अब इसके साथ मैं इलेक्ट्रोफाइल का रिएक्शन कर रहा हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, मिक्स्ड प्रोडक्ट मिलेगा मेरे को। कौन सा मिक्स्ड प्रोडक्ट मेरे को मिलेगा बेटा, मेरे को इलेक्ट्रोफाइल या तो यहाँ मिलेगा प्लस इलेक्ट्रोफाइल यहाँ मिलेगा। ये दो देखो बेटा, मैं इधर लिखूं या इधर लिखूं, एक ही बात है वो, बिकॉज दोनों पोजीशंस ऑर्थो पोजीशन है। तो आप मेरे को बताओ कि कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा और कौन सा माइनर प्रोडक्ट होगा और क्यों। सर सेकंड वाला मेजर रहेगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कम है। कौन बोला ये? मैं तेजस। तेजस वेरी गुड बेटा। दिस इज गोइंग टू बी द मेजर प्रोडक्ट एंड दिस इज गोइंग टू बी द माइनर प्रोडक्ट। बेटा मैंने से मेजर एंड माइनर, उसका मतलब क्या होता है कि अगर 100% प्रोडक्ट बना है तो 80% ये होगा और 20% ये होगा, 60% ये होगा और 40% ये होगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ मेजर एंड माइनर, सिंपल एज दैट। क्यों? ये देखो बेटा, जब इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे होता है, क्लोरीन यहाँ पे होता है, इनका डिस्टेंस कम है और इनके जो लोन पेयर और इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन है वो ज्यादा होगा, तो अनस्टेबिलिटी बढ़ेगा। और अगर इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे है वर्टिकली ऑपोजिट टू Cl, तब उनका रिपल्शन मिनिमम रहेगा और ये ज्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल होगा। इसलिए मुझे ये मेजर मिलेगा और ये माइनर मिलेगा। समझे बेटे? गाइस, यू Yes. अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट? Yes. एवरीवन इन दिस क्लास? Yes. ठीक है, कैन आई इरेज दिस? सर No. अभी नो सर। वो बोलो शारन। सर अभी वो 1 2 3 फिफ्थ रिएक्शन से हम लोग वापस उसको रिएक्ट करेंगे, तो अभी वो लोन पर ऐसा क्लॉकवाइज जाएगा इलेक्ट्रोफाइल। मैं समझा नहीं क्या बोल रहा हूँ। सर अभी फर्स्ट से कर रहे तो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, और हाँ। अभी फिफ्थ से करेंगे तो क्लॉकवाइज जाएगा। फिफ्थ से करोगे तो वो क्लॉकवाइज जाएगा, करेक्ट। आप ये उसको कैसा भी करो, इट्स गोइंग टू बी ऑर्थो एंड पैरा ओनली। वो करके बताऊं क्या? ये लिख लिया तुम लोग ने? No. कितना टाइम लगाओगे? इतना सा तो लिखना है बस, जल्दी करें। डन? डन गाइस? No. Am I connected? मैं डिस्कनेक्ट तो नहीं हूं, मैं कनेक्टेड हूं। मेरा आवाज आ रहा है क्या? यस यस तो गूंगे हो गए बेटा तुम लोग? Can I erase this? I'm asking you, can I rub this? Nobody's Yes. speaking. What is wrong with you people? Now to answer Sharon's question, let us look at another example. इस बार अपन क्लोरीन का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? और इस देखो, हमने पहले कहां पे डबल बॉन्ड यहाँ पे देखा था, राइट? अब हम लोग डबल बॉन्ड यहाँ पे देखेंगे। अब हम लोग डबल बॉन्ड यहाँ पे देखेंगे। कैन आई यूज द सेम मार्कर? ये कॉन्सेप्ट समझ गया तो, वरना मार्कर चेंज करने में Yes. लोन पेयर यहाँ आएगा, लोन पेयर यहाँ पे आएगा, तो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इस पोजीशन पे जाएंगे। तो यहाँ क्या हो गया, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ गए, ठीक है, और इस पे नेगेटिव चार्ज। अब these electrons will move over here, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ पे। ठीक है, अब क्या होगा, these electrons will go over here, और ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा।
ठीक है, अब क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ पे शिफ्ट होंगे और जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकले थे वो वापस उसमें चले गए। तो मेरे को ऑल्टरनेटिंग स्ट्रक्चर मिल गया, जिससे मैंने शुरू किया था उसका ऑल्टरनेटिंग स्ट्रक्चर। सेम चीज है बेटा, Yes. Yes. ओके बेटा। Yes. So if it is a ortho and para directing groups, the second substituent will always attach either at the ortho or the para positions. I hope the concept is clear. दोनों वैसे कर लिया हम लोग ने, इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में भी, दोनों तरीके से देखा। ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही सेकंड सब्स्टिट्यूएंट को अटैच करेंगे। Yes. यस अच्छा सर, हाइब्रिडाइजेशन भी चेंज होता है ना यहाँ पे? किस में बच्चे? नहीं, हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं होगा बेटा, पाई इलेक्ट्रॉन्स आर शिफ्टिंग ना, कार्बन Yes. का तो वही सेम हो रहा है ना। रिंग के अंदर यस यस रिंग के अंदर सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे बेटा, ठीक है। यस कैन आई इरेज दिस? Yes. 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 व्हाट इज द सेकंड टाइप? ऑर्थो और पैरा देख लिया, कौन सा बचा फिर? Meta. मेटा Meta. अच्छा, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। it's going to be meta directing group. That was called as ring activating group. This will be called as डीएक्टिवेटिंग। ring deactivating groups. Ring deactivating groups. वहां पे जो हमने एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयंस देखे वो कैसे थे बेटा? वो उनके ऊपर लोन पेयर था, Lone उनके pair पास था। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था। अब ये जो सब्स्टिट्यूएंट होगा ना, this is going to be over satisfied valency. For example, let us take an example of नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप का एग्जांपल हम लेके इसको करते हैं, मेटा डायरेक्टिव ऑफ नाइट्रो। NO2, ठीक है। यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। यू आर अंडरस्टैंडिंग? पॉजिटिव चार्ज क्यों है? हाँ, मैं वही उस पे आने वाला था। एनीबॉडी हैज एनी आइडिया ये क्यों है ऐसा? नाइट्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है? सर ऑक्सीजन लेगा, क्या बोल रहे हैं? एक नाइट्रोजन का है। सर एक लोन पेयर देगा एक वो lone- ऑक्सीजन को, और यस उसमें ऐसा सर, कंपाउंड है। नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है और 3 Yes. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। Unpaired. Yes. अब इसने 3 बॉन्ड्स तो बना लिया है, ठीक है, 3 बॉन्ड्स तो उसका बन गया। यहाँ पे आप देखोगे चौथा बॉन्ड भी है, तो इसका जो लोन पेयर था ना, वो लोन पेयर इसने ऑक्सीजन को दिया बॉन्ड के लिए, बिकॉज ये ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड चाहिए। दिस इज अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये डबल बॉन्ड कभी यहाँ होता है, कभी यहाँ होता है, कभी यहाँ होता है, कभी यहाँ होता है, ठीक है। Yes. तो वो अपना लोन पेयर दे देता है, इसलिए उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। यस Yes. अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स वैसे डीलोकलाइज होने के लिए तड़पते रहते हैं, बिकॉज वो स्टेबल नहीं है। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, वो यहाँ पे आएंगे, ऊपर आएगा डबल बॉन्ड। ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आएंगे। तो आप देखें क्या होगा, और इसका जो क्या बोलते हैं डबल ये वाला बॉन्ड बॉन्ड है, वो ऑक्सीजन पे चला जाएगा। लोन पेयर बनेगा। वो ऑक्सीजन पूरा ले लेगा लोन पे, ठीक है, यस बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स उस कंपाउंड में उतना ही चलेगा बेटा, ये बात हमेशा याद रखना। वो जो डबल बॉन्ड था वो उसके ऊपर चला गया, ऑक्सीजन के ऊपर। ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आए थे, इन्होंने यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लिया, यहाँ पे और यहाँ पे था। अब इस कार्बन एटम के पास एक बॉन्ड कम है, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ऑर्थो पोजीशन पे क्या हो गया बेटा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट हो गई। पहले ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स में क्या था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही थी, यहाँ पे कम हो रही है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है। कम हो रही है। Yes. Yes. ओके ओके। अब चूंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है, क्या होगा बेटा, इसका जो ये इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ पे शिफ्ट होगा, ठीक है, इसका जो ये इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ पे शिफ्ट होगा।
Now look at this. ये डबल बॉन्ड रहेगा ऐसा, O के ऊपर लोड है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या बोलते हैं यहाँ पे शिफ्ट हुए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, ठीक है। Yes. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा हुआ है, अनस्टेबल है। अब क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन आया है यहाँ पे, वो यहाँ पे शिफ्ट होकर डबल बॉन्ड बना देगा, बिकॉज ये पॉजिटिव उसको खत्म करना है। और क्या होगा, ये जो बॉन्ड है वो सॉरी, ये जो बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन पे शिफ्ट होंगे। ठीक है। Yes. अच्छा, अब ये यहाँ से चले गए तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्रिएट हो गया, है ना। ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से शिफ्ट हुए थे तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्रिएट था, अब इस पॉजिटिव खत्म करने के लिए ये यहाँ पे शिफ्ट होंगे और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया इसके जो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए थे उसका। ओके, अब यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट हो गए, बॉन्ड बना। ओके, अब क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स गए थे वो इलेक्ट्रॉन्स वापस आकर के यहाँ पे बॉन्ड बना देंगे और वो क्या बोलते हैं, वो वहां पे वो लोन पेयर वहां पे बॉन्ड बन जाएगा, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। मैं ऐसे दिखा दूं नीचे, ये देखो, बैक टू स्क्वायर वन, बैक टू स्क्वायर। यहां से ऐसे से शुरू हुआ था, ऐसा वाला स्ट्रक्चर आ गया, तो हमने ऑल्टरनेट कर दिया डबल बॉन्ड को। ये देखो डबल बॉन्ड पूरा ऑल्टरनेट हो गया, घूम गया। अब Yes. अगर इस स्ट्रक्चर को देखें, इस स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पे ज्यादा दिख रही है, ऑर्थो पैरा की मेटा? Meta. मेटा मेटा। ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन में तो उल्टा पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इलेक्ट्रोफाइल जो है, इलेक्ट्रोफाइल जो है, जो पॉजिटिव होता है वो नेगेटिव की तरफ जाएगा कि पॉजिटिव की तरफ जाएगा? नेगेटिव Negative. That's why such positive just such polar molecules with a positive charge, they will be meta directing groups और ring deactivating groups। वो रिंग के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स बाहर खींचेगा और ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन्स डालेगा, सिंपल एज दैट। तो ऐसा जब क्या बोलते हैं रेजोनेंस होगा, तब हमको पैरा प्रोडक्ट मिलेगा। पैरा प्रोडक्ट एक ही होता है, एक ही पोजीशन है, 100% पैरा प्रोडक्ट, सिंपल एज दैट। ठीक है, तो इट डिपेंड्स कि भाई कौन सी ग्रुप आ रही है। तो दीज आर द ओनली टू पॉसिबिलिटीज ओवर हियर, ठीक है। NH3 की देख लें आप, NH3 भी एक प्लस रहेगा अगर इसमें यहाँ पे ये है। देन यू हैव CN3, Cn प्लस, बिकॉज यहाँ पे देखो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है और ये चार बॉन्ड, तो ये ट्रिपल बॉन्ड बनाने के बाद इसके पास पॉजिटिव ये रहेगा, सॉरी यहाँ ये पॉजिटिव रहेगा और ये नहीं। Then we have COH aldehyde group, ठीक है, and so on। तो ऐसे कुछ groups are going to be your meta directing groups। तो कुछ ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स एंड कुछ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स याद रख लेना। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तुम लोग को दिमाग में? Yes. Yes. यस ये बना लिया? No. No. प्लीज बना लें आप।
Done? No. That's हो जाए तो बताना बेटा। सर लास्ट में नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा फिर से। नाइट्रोजन का भी सेम सीन है ना, 3 बॉन्ड बना लिए। अच्छा हाँ, लास्ट में हाँ आएगा उसके ऊपर, यस करेक्ट। उसके वजह से वो रेजोनेट होता रहेगा ना कंटिन्यूअसली, कभी यहाँ कभी वहां, ठीक है। यस। सारे 70 बच्चों को समझ में आया ना? किसी को एक को भी डाउट है तो प्लीज पूछो कि ऐसा क्या है, ये क्यों है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे को बताओ बेटा प्लीज, मैं बताएगा। और जब तक तुम बोलोगे नहीं तब तक मैं कैसे बोलूंगा? डन? नो। किती वेळ तुम्ही लावतात? वैसे कोई बात नहीं, चल। डन सर। अच्छा डन सर। हाँ हाँ, सबका हो गया। डन सर। अच्छा बैठा दो उसको, इरेज कर दो। यस। Yes. यस। अच्छा डन सर। ओके। डन सर। नो। नो सर बोलती हूँ। अबे शुभम डन। शुभम, ये 6th टाइम है जब तुम डन बोल रहे हो। शांति रखो, तुम्हारा हो गया ना? तुम लोग ने क्लास जाना शुरू सर किया मैंने था? नहीं बोला। यस कल टेस्ट था। Test था. यस। तुम लोग सिर्फ टेस्ट के लिए जाते हो? Yes. यस। अच्छा, किसी दिन मैं तुम्हें सरप्राइज विजिट दूंगा, तुम्हारा ये बनूंगा सुपरवाइजर कोऑर्डिनेटर, यस। Wednesday को ही रहता है. और हर सबको Wednesday. पकड़ पकड़ के मारूंगा। ऐसे आना मिलने। वैसे आना मिलने। डन शारन, वी आर वेटिंग फॉर यू। डन। हाँ तो कब बताओगी बेटा? सर आप बात कर रहे थे मेरे को। माय गॉड, such a nice girl, she has so many manners and boys are useless. Carcinogenic. Hey beta, what substance is called as carcinogenic? A compound, a Benzene substance substance. or something which induces cancer is called as carcinogenic. Simple as that. ठीक है? Cancer. यस। Benzene and benzene derivatives are highly toxic and carcinogenic. ये बहुत ही खतरनाक और कार्सिनोजेनिक होते हैं। ये अपने ब्लड वेसल्स के साथ ना रिएक्ट करके, अपने टिश्यूज के साथ रिएक्ट करके ना क्या बोलते हैं, कैंसरस ग्रोथ, अपना डीएनए को ऑल्टर करके कैंसरस ग्रोथ कर देते हैं ताकि सेल्स मल्टीप्लाई हो। व्हाट इज कैंसर? कैंसर इज द अनलिमिटेड अनकंट्रोल्ड अनयूजुअल Uncontrolled growth of अनकंट्रोल्ड cells. ग्रोथ डिविजन ऑफ ऑफ द सर सेल्स। सेल्स। उसको ठीक किया जा सकता है ना?
हैं? ठीक किया ठीक जा सकता है करते ना? क्या बोल रहे हो? सर, कैंसर को ठीक करते इससे। कैंसर को इससे ठीक नहीं करते, नहीं, इससे नहीं। कैंसर होता है, रेडिएशन कैंसर को रेडिएशन से। रेडिएशन से ठीक करते हैं बेटा, दो अलग अलग चीजें यस, हैं, ठीक है। इससे कैंसर होता है, रेडिएशन कैंसर को खत्म करता है, बट नॉट ऑल लेवल्स ऑफ कैंसर। सम कैंसर्स आर स्टिल Yes. अनक्योरेबल, सम कैंसर एट द इनिशियल स्टेज कैन बी क्योर्ड, but you need to remember that benzene and benzene ka derivatives, they go inside your body and they do stupid reactions and they cause carcinogenic क्या बोलते हैं, this is carcinogenic substance, so do not, please don't drink benzene. बेंजीन कहाँ मिलता है? अरे कभी तुम लोग को एक्साइटमेंट में हुआ है नो, आज की जनरेशन लेट अस ट्राई दिस एंड देन समथिंग एल्स विल ट्राई, ठीक है। अच्छा चलो, I want everybody to find the IUPAC name of this compound which is given in front of you. कौन आंसर देगा जिसको मैं पूछूं? I want to see if everyone is alive or dead. बोर्ड दिख रहा है ना? नहीं नहीं सर, दिख अभी रहा नहीं है। दिख रहा है। ए भाई ये क्यों नहीं दिख रहा है? आपका आता है शायद से। अभी दिख रहा है? Yes. Yes. What are the rules? Find the longest chain. Number, start numbering from that end such that the side chain gets the lowest numbers. Then mention each position of the side chain. And then find the parental chain and name it. Oh. Done? मैंने यस। रैंडमली दिया है, मैं खुद सॉल्व करने वाला हूँ इसको। Is this the longest chain? यस। Yes. Yes. यस। ये एंड से नंबरिंग करूं कि ये एंड से नंबरिंग करूं? लोवेस्ट लोकल टू। First one. फर्स्ट। यस। 8. पेरेंटल केन क्या है? Octane. 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 ऑक्टेन। तो नाम क्या हो जाएगा? ऑक्टेन। 10 अच्छा, कौन से पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट्स है? 2 3 2, 3, 2, 3, 3, comma 5. 3. 5. 2 पे क्या है? मिथाइल। Methyl. 2 पे क्या है? डाइमिथाइल। Methyl. 2 पे क्या है? इथाइल। इथाइल। 2 Ethyl. पे क्या है? इथाइल। मिथाइल। Methyl. पहले इथाइल आएगा कि पहले मिथाइल आएगा? Ethyl. Ethyl. तो कौन से पोजीशन पे इथाइल है? 4. 4. 4. इथाइल 2 3 4 5 2, 3, 3, 5 टेट्रामिथाइल टेट्रामिथाइल। ऑक्टेन। Octane. ऑक्टेन। Octane. सबको यही आंसर आया? Yes. यस सर। अभी मुझे थोड़ी दिख रहा है, किसी ने गलत किया होगा तो भी ऐसे ही सर- बोलोगे सब लोग। Sir, सर साइक्लो 3, 5 टेट्रामिथाइल ऑक्टेन। हाँ बोलो बेटा। sir, हम्म। 2, 5, 8 मिथाइल और उसके बाद 3, 3 डाइमिथाइल और उसके पहले सबसे पहले 4 इथाइल ऑक्टेन नहीं लिख सकते? नहीं,
इथाइल पहले आना चाहिए, लोवेस्ट लोकेंट मिलना चाहिए। 8 बिट कहां से आया बेटा तुमको? सर इक्विवेलेंट पोजीशन रहेगा तो सर हाँ तो 4 मैं इसे भी करूं। सर इथाइल को पहले करना है या मिथाइल को इक्विवेलेंट इथाइल, करना है? ऑब्वियसली इथाइल, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। यस, लोअर नंबर उसको देना है या मिथाइल को देना है? लोअर नंबर इथाइल को मिला है ना, यस यहाँ से करेंगे तो 5 आता है। इसको करो नॉमेनक्लेट। हो गया। सर हो गया। हो गया 3 सर। डाइमिथाइल हेक्सेन 2 ऑल। अच्छा, लॉन्गेस्ट चेन सामने सामने दिख रही है। सर 3,3,4 ट्राइमिथाइल 2 हेक्सेनॉल। सर और एक ट्राइमिथाइल है 3,3,4 3,3,4 ट्राइमिथाइल हेक्सेन 2 ऑल। हेक्सेनॉल। हेक्सेन 2 ऑल 2 हेक्सेनॉल। 3,3,4 ट्राइमिथाइल हेक्सेन 2 ऑल। 2 हेक्सेनॉल। 2 हेक्सेनॉल या फिर हेक्सेन 2 ऑल। Hexane to all. दोनों में से कोई भी करेक्ट है बेटा। आप बोल रहे हो 2 हेक्सेनॉल, यस। ये भी करेक्ट है, बट आई वुड सजेस्ट स्टिक टू दिस बिकॉज़ दिस इज द लेटेस्ट स्टैंडर्ड। दिस इज आल्सो करेक्ट, दिस इज नॉट रॉन्ग बेटा। 2 हेक्सेनॉल इज आल्सो करेक्ट, बट स्टिक टू दिस। दिस एक्चुअली टेल्स यू दैट सेकंड पोजीशन पे अल्कोहलिक ग्रुप है, तो लेटेस्ट वर्जन ये है, तो इस पे ध्यान देना बेटा, ठीक है? यस। अच्छा, इसको नॉर्मल क्लिक करो। बस 2-3 लोग ही आंसर दे रहे, बाकी सब लोग तो चल बाइक चल रहा है, बोलना नहीं है, सो जाते हैं, खा लेते हैं, नहा लेते हैं। कितने लोग नहाते हुए लेक्चर देख रहे हो बेटा? सर 5 ethyl 4,4,5 trimethyl hept 2 in। वाह वाह, कौन बोला तेजस? हाँ ये लॉन्गेस्ट चेन लिया। यस। Yes. नंबरिंग कहां से करो, यहां से कि यहां से? Right से. Right. राइट से। लेफ्ट से but राइट, लेफ्ट से राइट। बेटा हम लोग को जब ऐसा रहेगा ना, तो डबल बॉन्ड को लोएस्ट पोजीशन मिलना चाहिए। Yes. लोवेस्ट। Yes. लेफ्ट से राइट। यस। थर्ड पोजीशन है। 7। डबल बॉन्ड सेकंड पोजीशन पे आएगा। अच्छा, 5 इथाइल 4,4,5 trimethyl 4,4,5 trimethyl trimethyl hept 2 in। hept 2 in। F2E, वेरी गुड। यस, 3 क्यों नहीं आएगा? क्या बोल रहे हो बेटा? 3 इन क्यों नहीं आएगा? 3 नहीं आएगा ना, लोएस्ट नंबर क्या, कौन से कार्बन डबल बॉन्ड को? सेकंड को है ना यस बेटा। सेकंड और थर्ड के बीच में डबल बॉन्ड है, तो लोएस्ट नंबर कौन सा? सेकंड, तो इसलिए F2E। ओके, यस। यस।
सर अगर वो डबल बॉन्ड नहीं तो ट्रिपल बॉन्ड रहेगा ना, दोनों साइड से सेम नंबर मिलता रहेगा, तो कौन सा नंबर को किधर से नंबरिंग करने का? ट्रिपल बॉन्ड को लो इसमें। सर सर नहीं, ट्रिपल मतलब बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड रहेगा ना, लोवेस्ट बॉन्ड रहेगा, हम्म एग्जांपल डबल बॉन्ड है सिर्फ, तो हम्म। अभी बीच में रहेगा दोनों के, दोनों साइड से सेम नंबर मिल रहा है, तो कौन से तो इधर? कहीं से भी कर सकते हो, कहीं तो तब फिर वहां से करना है जहां से साइड चेन को भी लोअर नंबर मिल रहा है और डबल बॉन्ड को भी लोअर। यस यस। यस हायर प्रायोरिटी डबल बॉन्ड कर हायर प्रायोरिटी। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दो, चल ट्राई करो इसको। डन। Yes, डन sir, सर that's सर it. 2,4,4 5,5 पेंट मिथाइल हेक्सेन 2,3 डाइऑल। वाओ। सर 4 नहीं 5 सर, इथाइल 4, 5 इथाइल 5, 5 टेट्रा मिथाइल हेक्सेन 2, 3 ऑल। वाओ, तो कितना का नाम सर ने कैसे? इथाइल करवा दिया This is the सर ऐसे longest लिखा chain. 4 5 इथाइल ऐसे लिखा 4 This is 5 the इथाइल longest 2 chain. मिथाइल This is the longest chain. यस। Yes. Yes. अच्छा, 2, 4, 4 5, 5, 5,5 5. 1, 2, 3, 4, 5 पेंटा मिथाइल। ठीक है, पेंटा मिथाइल एक्सैन 2 2, 3। Yes. सर सर 2,3 3 डाइऑल, पे भी है। 3 का भी है. 2,3 डैश डाइऑल। Yes. This is the answer. यस 2, 4, 4, 5, pentamethyl hexane 2,3 diol. Others, are you understanding? हम लोग क्या कर रहे थे अभी? सर Are you 3,2 लिखा तो चलेगा ना? क्या आपसे बोल रहे हैं? वो अल्कोहल ग्रुप का नंबरिंग 3,2 लिखा तो चलेगा ना? नहीं बेटा, 2, 3 करो ना. Let us not interrupt the system. सर 4 और 5 फिफ्थ पोजीशन में इथाइल ले लिया मैंने टोटल क्या बोल रहे बेटा? फोर्थ पोजीशन में इथाइल लिया अलग अलग है नहीं? ये देख बेटा, अगर ये ऐसे होता तब हम उसको इथाइल कंसीडर करते हैं. ये अलग अलग है. ठीक है? यस ओके शुभम? यस ओके ठीक है. ये चैप्टर ओवरऑल समझ में आया आप लोग को? Yes. 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 यस। ठीक है. Go through it. Keep practicing the numericals, not numericals, but the reactions. You will go through it. Basics clear रखो लेकिन अपना. ठीक है? 12th में काफी काम आएगा ये basics छोटे मोटे जो चीजें हैं. Okay guys. चलो then we'll close the lecture today. Have fun. Bye bye. Bye. बाय।
मैडम हो गया लेक्चर, आप कैंसिल, आप बंद कर सकते हो अब इसको।